Good morning. Shiba Inu, one of my favorite tokens because इसकी journey start हुई थी as a meme coin. If you guys don't know, meme coins are just created for fun, for the purpose of fun. उनकी कोई utility नहीं होती, उनके कोई fundamentals नहीं होते, and they're just created for fun by the community, and they're hoping कि like X number of लोग खरीदेंगे meme coin को और उसकी price appreciation होगी and the whole community is going to make money. So that's the only purpose of meme coin. So Shiba Inu started as a meme coin. लेकिन very interestingly it got adopted by a very good team, जिसके बाद उन लोगों ने उसके fundamentals create करना शुरू किए, उसकी utility define करना शुरू की, और मैंने ये पूरी journey witness की है of Shiba Inu started as a meme coin onto a utility token, and now the team is actively working on its fundamentals. मेरी community में बहुत सारे लोग हैं, इवन क्रिप्टो की वाइडर कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि शिबा इनू होल्ड किए हुए. मैंने शिबा इनू का काफ़ी बड़ा बैग होल्ड किया हुआ है, ऑल्दो आई एम नॉट ए बिग बिलीवर ऑफ होल्डिंग एनी ऑल्ट कॉइन एक्सक्लूडिंग वेरी फ्यू फॉर वेरी लॉन्ग. लेकिन मुझको ये लगता है कि शिबा इनू हैज़ द होल पोटेंशियल टू ईट एटलीस्ट इट्स 2 zeros from now. Just for your reference, is at filming time Shiba Inu is changing hands. Yeah, it's trading at 0.000007521 US dollars. लेकिन I believe कि Shiba Inu next bull run में, which is 2024, it's going to eat 2 zeros, so it will be somewhere around 0.0001 something. That's what I believe. और मेरा जो belief है उसके पीछे obviously reason है जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी. But before we get started, please अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ which is daily, तो तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन आए. You will get a lot of information from my channel, from my YouTube channel and from my TikTok channel. So let's get started. So that is the first news मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी in reference to कि शिबा क्या शिबा 0.0001 का हो सकता है. Obviously it will not happen tomorrow. Although इनके few upgrades और updates आ रहे हैं जिनके बारे में मैं तुम्हारे साथ अभी डिटेल में डिस्कस करूँगी इस वीडियो पे. लेकिन हाँ, next bull run में it can easily eat 2 zeros. That's what I believe, and I'll discuss the reasons in much detail. So according to this one, Satoshi Kusama, I would say the brain behind Shiba को meme coin से लेकर utility token तक लेकर जाने का और उसके fundamentals develop करने का जो brain है behind it's Satoshi Kusama. He says that Shibaarium's secret weapon is burning the portal on the horizon that would skyrocket Shiba price to 0.0001 ? तो इस वीडियो का मकसद तुम लोगों के साथ शिबा की अपडेट्स को डिस्कस करना है और ये देखना है कि क्या वाकई इज इट पॉसिबल. आई मीन कहना तो आसान है, इट कैन बी अ स्वीपिंग स्टेटमेंट कि शिबा 0.0001 का हो जाएगा. मैं अक्सर अपनी प्रेडिक्शंस दे रही होती हूँ टिकटॉक लाइव्स के ऊपर, लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर तुम लोगों को, एंड आई ऑलवेज ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुम लोगों को उसकी रीजनिंग भी दूँ. अगर लाइव पे इतना टाइम नहीं हो पाता तो मैं कहती हूँ टेलीग्राम पे आ जाओ एंड आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू एज पर द फंडामेंटल्स. एनीवेज, according to this, basically Kusama is the lead developer of Shiba Inu और उसने ये कहा है कि a burn portal for Shibaarium protocol is under development, which means कि they are going to burn tokens, which means कि Shiba की supply को वो लोग कम करेंगे, उसको scarce बनाएंगे, एक scarce asset, एक scarce hopefully a commodity बनाएंगे, token बनाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो है डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसकी price बढ़ेगी. So he emphasizes that while the protocol aims to burn the tokens to reduce the supply, the ultimate goal is a broader adoption and utility of Shibaarium ecosystem. Now, what does that mean is कि basically Shibaarium जो है वो Ethereum based एक layer 2 extension है of the Shiba Inu project. And that has generated a great deal of excitement. इसकी कुसामा की इस tweet के बाद, कुसामा की इस revelation के बाद, there's a quite lot of excitement within the community. और उन लोगों ने announce किया था सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे. तो अगर तुम लोग शिबा के टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो करते तो you must, and if you're a Shiba holder you must.
तो बर्न पोर्टल की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके दो मकसद हैं कि टोकन को बर्न किया जाएगा, नंबर वन ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, और दूसरा कि शिबेरियम का जो प्रोटोकॉल है उसकी वाइड एडॉप्शन। अब शिबेरियम के प्रोटोकॉल की वाइड एडॉप्शन वुड ऑल्सो ऑटोमेटिकली, इनहेरेंटली, इंट्रिंसिकली increase the adaptability which would increase the price. So एक तो burn करना, तो supply को कम करना, सप्लाई को कम करना, डिमांड को बढ़ाना, डिमांड को बढ़ाना तो मतलब प्राइस को बढ़ाना, नंबर वन। नंबर टू, जितनी ज़्यादा वाइड एडॉप्शन होगी उतनी उसके इकोसिस्टम पे डेवलपमेंट्स होगी, इकोसिस्टम की यूटिलिटी बढ़ेगी, और फिर जो दो टोकन्स बोन और शीबा जो कि इनके इकोसिस्टम के प्राइम टोकन्स है वो जितने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड एंड प्राइस अप्रिसिएशन। वाई इज टोकन बर्निंग एंड एडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर शिबेरियम, बिकॉज इट, ये दोनों जो एक्ट्स होंगे यानी कि टोकन बर्निंग और एडॉप्शन वुड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ ए नेटवर्क। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जैसे जैसे बर्निंग फोकस करेगी ऑन प्रिजर्वेशन और वैल्यू इंक्रीज करने में, वैल्यू ऐड करने में और इंक्रीज करने में, एडॉप्शन जो है वो एम करेगी कि यूटिलिटी बढ़े टोकन की और जो नेटवर्क पे वो एक्टिविटीज बढ़े, जो कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होगा फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, राइट। अब ये बात ज़रूर याद रखो कि जो बर्निंग टोकन्स विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोटोकॉल यूटिलिटी इज कंपेरेबल टू रिमूविंग सीट्स फ्रॉम अ कार दैट नोबडी वांट्स टू ड्राइव, राइट। अगर एक गाड़ी के अंदर कोई सीटें नहीं है, कोई सीट्स नहीं है, तो कौन गाड़ी को ड्राइव करेगा? बिल्कुल इसी तरीके से टोकन बर्न करते रहो, लेकिन अगर आप उसके प्रोटोकॉल की यूटिलिटी या यूसेज नहीं बढ़ाओगे तो इट्स यूजलेस। सो बर्निंग टोकन्स, कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में अगर आप ये सुनो कि हम टोकन्स बर्न करेंगे, फेयर इनफ टोकन्स बर्न करोगे, सप्लाई कम करोगे, डिमांड बढ़ाओगे, वी गेट दैट, लेकिन व्हाट वुड इंक्रीज उस प्रोटोकॉल की यूटिलिटी, उस प्रोटोकॉल की यूटिलिटी किस चीज़ से इंक्रीज होगी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कुसामा ने बहुत क्लियरली एड्रेस किया, कुसामा ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है अपने माइलस्टोन्स में, अपने रोड मैप पे। आसान ज़बान में, टोकन की वैल्यू और यूटिलिटी आर नॉट टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। तो टोकन की वैल्यू बढ़ाना और यूटिलिटी होना आर नॉट टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स, रादर दे वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड। कि टोकन की यूटिलिटी बढ़ेगी तो ही उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। अगेन आई विल रिपीट, येस स्कैरसिटी फैक्टर एस्पेक्ट डस फैक्टर इन, डस काउंट, लेकिन सिर्फ टोकन्स को बर्न करना और उसकी यूटिलिटी पे काम ना करना, उसकी प्रोजेक्ट को डेवलप ना करना, उसके प्रोटोकॉल को डेवलप ना करना, उनकी इकोसिस्टम के ऊपर एक्टिविटी ना लेकर आना इज़ नॉट इनफ। और यही रीज़न है जो मैंने, अगर तुम लोगों ने मेरी लेटली आईसीपी की वीडियो देखी है ऑन टिकटॉक, फिर आई एम सेइंग दैट व्हाई आई डोंट बिलीव इन आईसीपी, दैट इज़ द मेजर फैक्टर जिसको मैं कह रही हूँ कि उनके इकोसिस्टम के ऊपर डेवलपमेंट्स नहीं है, उनकी इकोसिस्टम के ऊपर एक्टिविटीज़ नहीं है। जो पुरानी एक्टिविटीज़ हैं अगर वो भी रुक गई हुई हैं, जैसे कि मैंने तुम लोगों को उस वीडियो में डिटेल बताया है, तो व्हाट्स द पॉइंट? आई विल स्ट्रगल टू सी कि किस तरीके से आईसीपी की प्राइस ग्रो करेगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू शिबेरियम का जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, अगर आप उसको देखो तो उसमें उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया हुआ है। ये शिबा इनू का स्ट्रेटेजिक रोड मैप है। अब ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड जस्ट रीड इट योरसेल्फ एंड एक्सप्लोर इट योरसेल्फ, लेकिन मैं इसको स्किम रीड करूंगी और मैं इसकी जो मेन पॉइंट्स उनके बारे में बता रही हूँ। इस स्ट्रेटेजिक रोड मैप में इन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आउटलाइन किया हुआ है, जिसमें ये लोग की स्टेप्स बता रहे हैं और जो इनिशिएटिव्स लेंगे जिसके थ्रू वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करेंगे, राइट। तो जहाँ भी तुम लोगों को लगे कि शिबा इज नॉट परफॉर्मिंग वेल या शिबा का क्या होना है, और नॉट जस्ट शिबा, किसी भी टोकन का, इफ यू नीड टू नो कि what they are doing and whether or not they are doing and they're delivering what they are promising, तो go to these strategic roadmaps and they clearly tell you. They clearly tell you what they want, where they want to be, and how far they have reached. So do watch this one. Do explore it. Definitely do explore it. It's worth exploring it. अगर मैं इनके रोड मैप को बहुत क्लोजली फॉलो करूँ, देखूँ, तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि शिबेरियम जो है इट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वाइट गुड रिकवरी फ्रॉम जो माइनर इश्यूज इन लोगों ने अगस्त में इनिशियल लॉन्च में अगस्त में देखे थे, जो कि फेल्ड अटैम्प्ट थी। बट दैट हैपन्स, एज आई ऑलवेज से,
कि टेक के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें फेलियर्स होते हैं, इनमें फेल्ड अटैम्प्ट्स होती हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि किस तरीके से टीम जो है वो बहुत कॉम्पिटेंटली और बहुत क्विकली और बहुत स्विफ्टली उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर देती है, और एंड दे गेट बैक ऑन द रूट, दे गेट बैक ऑन देयर फीट अगेन एंड दे जस्ट कीप इट अप एंड रनिंग. फॉर अ क्विक रेफरेंस, 2022 समर में, जून में सुनाने के साथ एग्जैक्टली ये हुआ था. उनके टेस्ट नेट्स में, उनके लाइव नेट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, उनके हैक हुए थे, एंड इट टुक द टीम 6 months. दिसंबर में जाके इनके इश्यूज़ ख़त्म हुए थे, और फिर जनवरी 2023 यानी कि इस साल जनवरी से दे आर बैक ऑन ट्रैक एंड दे आर डेवलपिंग. तो डू कीप एन आई. सो अगेन ये प्रॉब्लम्स आना, ग्लिचेस आना इज़ नॉट अ बिग डील. द बिग डील इज़, और हमेशा इस बात पे फोकस्ड रहना, कोई भी प्रोजेक्ट हो, इररेलेवेंट, रिगार्डलेस कोई भी प्रोजेक्ट हो, look at the team कि टीम किस तरीके से आके they come forward and they address the conflict or the issue or the problem, which reminds me of Gala Games. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन what I'm observing with Gala Games is कि उनका टीम कॉन्फ्लिक्ट आ गया हुआ है, ठीक है. और जो टीम कॉन्फ्लिक्ट है, जो टेक के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, नॉट जस्ट नेसेसरली टेक, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न होती है टीम कॉन्फ्लिक्ट. 70% ऑफ द टाइम इट्स द टीम कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गाला गेम्स फेल हो जाएगा, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड द स्टैटिस्टिक्स विथ यू इन फ्रंट ऑफ यू कि तुम लोग समझ सको कि व्हाट्स गोइंग ऑन. तो व्हेन अ को-फाउंडर इज सुइंग, एक को-फाउंडर सू करते हैं सीईओ को, और सीईओ को-फाउंडर को सू करते हैं, यानी कि दो को-फाउंडर्स आर फाइटिंग publicly, which means कि उनका team conflict is too much of a problem कि they are not even realizing कि how much it's affecting the project की credibility and how much it's affecting the investors. Because at the end of the day, अगर मैं गाला की investor हूँ, तो I want to, ठीक है, if I'm not getting my returns, ROI, because it's a bear market, it's a bear, हम लोग इस bear market में, अगर मुझे अपनी ROI नहीं भी मिल रही है तो fine, I can wait. लेकिन the worst thing and the last thing I want to hear right now is कि Gala Game के co-founders are fighting. And they're not realizing कि it's not just two of them, $150 million का theft, $150 million का theft, और $130 million worth का theft. Clearly shows insider greed. If that's true, of course no one knows what's true. The court ही decide करेगा what's true and what's not true. But it's not helping the investors. It will not help the investors. It would definitely pull away many new investors. मैं 4 महीने पहले तक मैं मुस्तकिल कहती थी गाला फैंटम गाला सुलाना ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन 3 महीने पहले से I started pulling out, और मैंने अपनी कम्युनिटी को भी बताना शुरू किया. So I've got a community of roughly under 100,000. तो imagine, जब मैं कह रही हूँ कि गाला को ना बाय करो, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस बात को अग्री कर रहे हैं, because it's obvious, it's pretty obvious how much it's going to affect the credibility of the project. And would it come back on its feet? Maybe. कोई conspiracy theory है इसके पीछे? Maybe. We don't know. But at this point in time, would I invest in Gala? Definitely not. But would I suggest you to invest in Gala? Definitely not. But anyways, coming back to Shiba, I always get carried away with all these information. So yes, as I said, the team is implementing a very comprehensive strategy to seek effectiveness of the protocol, of Shibaarium protocol, और उसकी security enhance. So that security is very important, which includes, for example, they're adding more validators, and they're considering the possibility of revoking the contract addresses from their native token, which is called Bone Shiba Swap, or Bone, B-O-N-E, Bone. Which is not a bad thing. It's actually ensuring कि दोनों के जो contracts हैं, कि दोनों के जो आगे जाके जब ये project मज़ीद बड़ा हो तो conflicts ना आए, problems ना आए. So this is actually a good thing. It's not a bad thing. If you don't know, Bone जो है वो Shiba Swap जो कि DEX है इनकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसका गवर्नेंस टोकन है, और उसके पास वोटिंग फंक्शनैलिटी, यानी कि जो शिबा जितना ज़्यादा बोन होल्ड करेगा कम्युनिटी के अंदर, वो राइट्स, वो अपने ओपिनियन को वोट करेगा, वो अपने ओपिनियन को वॉइस करेगा, एंड द प्रोजेक्ट हैज़ टू लिसन. लेट्स से इफ आई एम अ बिग होल्डर ऑफ बोन,
तो my voice would matter and my voice will be heard by the project, और उनकी जो project developments होंगी उसमें जो मेरा input होगा उसको बहुत ज़्यादा weightage दी जाएगी because I'm the bigger holder of Bone. So that's what the concept of governance token is with voting functionality. So Bone would allow Shiba Inu community, or mostly known as Shiba Army, कि वो vote कर सकें on upcoming proposals, submit proposals and access the future to NFTs, access future NFTs. So that is pretty much exciting when it comes to Shiba. So I think कि इनका जो token burning or adoption है, it will really take Shiba to new heights, and I believe कि if they continue this journey, if they continue to deliver what they are promising via their roadmap, जो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दिखाया है, shibaverse.io/roadmap, you can just Google it yourself. और उसको ज़रूर पढ़ो if you're a Shiba holder and if you're into cryptocurrencies, and if you're a believer of Shiba. I'm a believer of Shiba. I support Shiba not just for my not just कि मेरी price appreciation हो, मुझे मैं एक investor हूँ, बल्कि I genuinely support Shiba because I believe in Shiba, because I just have witnessed his journey and I'm just emotionally connected. I mean, I'm just emotionally attached with Shiba the way we are emotionally attached to iPhones and iMac and MacBook Pro and Apple Watch. Like I'm just attached to these things, although मेरे पास Android भी है, लेकिन I always keep going back to Apple क्योंकि मैंने बचपन से Macintosh के computers देखे, and I remember going to the Macintosh stores, और वहाँ पे जो computers होते थे और बहुत मैं excited हो जाती थी as a child. So like what I'm trying to say is कि मेरी एक association है, तो if इस तरह से मेरी एक association है Shiba के साथ, so I firmly believe in the project and of course price appreciation. So yeah, that's what's happening with Shiba. If you are a believer of Shiba, मुझे comment में ज़रूर बताओ if you're a believer of Shiba. Leave me a heart कि yes, I'm a believer of Shiba, or I believe so कि it has whole potential, specifically ये जो इनका updates हैं burning portal, that I think is very 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 much necessitated, क्योंकि मैंने फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसा project नहीं देखा जो कि token burning के बाद what's next, what's the outcome of token burning पे भी ज़्यादा emphasize करे. So he is clearly saying कि it's not just the token burning but the utility of the protocol जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग enhance करेंगे ताकि हम लोगों का जो project है it flourishes and it grows. If you want to buy Shiba, that's Shiba का chart on it's a 4 hours chart of Shiba. Of course इस वक्त तो काफ़ी नीचे आया हुआ है, but I can clearly see कि once it will cross this 0.000113, then we have a lot of room for further growth, and I can clearly see Shiba eating its 2 zeros in next bull run. अगर आप लोगों को Shiba buy करना है तो I think this is a good level, which is 0.00006951. Thank you all for watching and I'll see you in my next video.